tell me, up to yesterday's nomenclature, everyone is very clear? Anyone having any doubt? Yes, ma'am. No, ma'am. No, na? Okay, fine. So let's start. Yes, ma'am. What, beta? Ma'am, I mean other things. Beta, your voice is not clear. Either use a chat box or repeat what you are saying. Ma'am, now it's clear. Yes, yes. Ma'am, Again, voice gone, beta. Use chat box one time. Use chat box, beta. मैम आप कल फंक्शनल ग्रुप का करवा रहे थे ना, अगर हाँ. मोर देन वन आ जाते हैं तो Yes. Today we are going to continue with that. Start करें फिर continue करें. यस मैम. Yes. Okay, fine. Now look, yesterday we discussed that if you are having the functional group or more than one functional group आ जाता है, then how we are going to do the naming. First of all, in the previous class, I have already discussed that when we talk about the functional group, we are having the two types of the functional group. The one type is called as a terminal and another type is called as a non-terminal. Okay. Now, whenever we are talking about the terminal, all the functional group of the terminal one, all are going to start with carbon. Okay. All are going to present at terminal position of the chains. Then carbon atom of such type of functional group, of these groups you can say, are always given number 1. Clear? Now when we talk about the non-terminals, non-terminals के केस में बस आपको यही ध्यान रखना है that they should be given the lowest number and they can present in between the carbon chain. Now for example, let's do the few examples for this. I am having CH3, CH2, CH, CH3, CH, C2H5 and CHO. Now look over here. How many functional groups I am having over here? I am having one functional group over here, another substituent here and another substituent here. Isn't it? Now which functional group is this? ये वाला कौन सा functional group है? Tell me. जल्दी से बताओ. मैम एल्डिहाइड. वेरी गुड, इट इज एल्डिहाइड. अब एल्डिहाइड क्या हो गया, इसके पास कार्बन एटम है, इट इज अ टर्मिनल. तो हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नंबरिंग, हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है, कार्बन ऑफ दीज ग्रुप आर ऑलवेज गिवन नंबर 1. सो योर नंबरिंग विल स्टार्ट लाइक दिस 1 2 3 4 5.
तो अब आपका पेरेंट कौन हो गया? पेंट, इजंट इट? यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? अल, तो आप इसका क्या नाम लिखोगे? पेंटेनल। सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है आपका? इथाइल। इथाइल। और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल। ई पहले आता है, तो यू आर गोइंग टू राइट डाउन 2 इथाइल 3 methyl. पेंटेनल। अब यहाँ पे जो मैंने पेंटेनल लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पेंटेन 1 अल। बोथ आर करेक्ट। गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके मैम। Okay. Now coming to the next example. CHO, CHO और यहाँ पे बॉन्ड आ गया. Now anyone who can give me this answer. जब भी स्कूल खुलेंगे, I will bring the chocolate for that student. What will be its name, beta? मैम डाई अल डाई एथेनल। डाई अल एथेनल. अब देखो बेटा, you are 90% I should say you are correct. Okay. डाइल इज करेक्ट और एथ इज करेक्ट. अब देखो बेटा यहाँ पे, बिकॉज वी आर हैविंग द 2 कार्बन एटम्स 1 and 2, 2 कार्बन एटम से दोनों कार्बन एटम्स जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप है. तो हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन इट कि एल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम पे है. तो यू आर गोइंग टू राइट डाउन लाइक दिस, इथेन 1 2 डाइल. ओके, गॉट इट? ओके मैम। नेक्स्ट, मैम हम इसको डाई इथेनॉल नहीं लिख सकते? डाई, बेटा डाई इथेनॉल इथेनॉल. नहीं रख सकते, इसलिए क्योंकि आपका इथेन जो है वो 2 बारी थोड़ी है. इथेन हम कब बोलेंगे? जब आपके 2 कार्बन एटम्स है. अगर आप यहाँ पे डाई लगा दोगे तो इसका मतलब आपका इथेन ग्रुप भी 2 बारी है. गेटिंग द पॉइंट? Yes, ma'am. ओके बेटा. नाउ कमिंग टू द थर्ड एग्जाम्पल. मैम एक बार स्क्रॉल कर दो ऊपर. ओके बेटा, लो. Should I move ahead? Yes, ma'am. Yes. Okay, fine. Now coming to the next examples. CH3, CH2, C, CH2, COOH, CH3 and CH3. अब देखो यहाँ पे, this is your carboxylic acid group. It is a terminal group. तो it means आपकी नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5. तो ये आपका पेरेंट हो गया पेंटे, कार्बोक्सिलिक एसिड है, पेंटेनोइक एसिड. अब बताओ आगे क्या आएगा इसके? मैम Ma'am, 3 डाई मिथाइल पेंटेन। वेरी गुड. इट विल बी 3 डाइमिथाइल पेंटेनोइक एसिड. मैम गुड. जरूरी है 3 बार 3 लिखना? हाँ बेटा, इसलिए क्योंकि 3 पोजीशन पे 2 ग्रुप्स प्रेजेंट है और आप डाई वर्ड यूज कर रहे हो, इसलिए आपको 2 बारी 3 लिखना है. ओके. Coming to the next, CH3, CH2, sorry, CH3, CH2, इसको भी हम क्या करते हैं, CH3, CH2, CH3, CH3, अरे अरे,
सेम ही हो जाएगा ये। CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5 CH। मैम ये थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड है। नहीं बेटा, सब सिंगल है यहाँ पे। ओके मैम। ओके, इसको सॉल्व करके बताओ 1 मिनट। मैम 3, मैम बताएं। हाँ हाँ बताओ बेटा। मैम 3 इथाइल, मैम 3 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। नो मैम 3 इथाइल 4 मिथाइल 2 3 4 5 हेक्सेनोइक एसिड। वेरी गुड, हेक्सेनोइक एसिड। 3 इथाइल, फिर क्या बोला था आपने? 4 मिथाइल। 4 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। वेरी गुड, हेक्सेनोइक एसिड। गुड, नेक्स्ट करते हैं। नाउ आप ये चैप्टर ले लो ना पेपर में। अरे अभी in the next PT I will take this chapter. HCOO. HCOO. इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना ये? बढ़िया है। यस मैम। Yes. Tell me this answer. मैम COOH तो 2 बार आ गया। 1 minute खुशी। मैम 2 ब्यूटेनोइक एसिड। नहीं, मैंने उसमें ये करा था कि 12th में चेंजेस हैं और 11th 12th का विल बी सेम। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। यस, सॉरी स्टूडेंट्स। हाँ जी मैम बेटा। 2 मैम 1 4 डाइओइक एसिड। मैम 2 मैम 1 4 मीथेन 1,4 डाइओइक एसिड। 1,4 डाइओइक तो सही है बेटा आपका। पेरेंट आप लोग गलत कर मैम रहे हो। मीथेन नहीं बेटा, अब ब्यूटेन आएगा। हाँ बेटा, आएगा। यस ब्यूट आएगा, ब्यूटेन। नाउ लुक स्टूडेंट्स, वन थिंग। Everyone is, my voice is clear to everyone? यस मैम। ओके, अब देखो देखो बेटा यहाँ पे क्या है। I told you whenever we are having the terminal functional groups, तो उनके कार्बन एटम्स को आप काउंट करोगे। When you are going to count the carbon atoms, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स हो गए। 4 कार्बन एटम्स का मतलब पेरेंट कौन हो गया? ब्यूटेन। एंड आपका जो ओइक एसिड है, मतलब जो एसिडिक ग्रुप है, वो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है और फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू राइट डाउन 1,4 डाई ओइक एसिड। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। पक्का? Yes. अब Yes, एक और ma'am. एक दो और पूछ लो। अब एक दो नहीं, अभी ये वाला चैप्टर अभी सारा ही ये ऐसे ही चलेगा बेटा, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ प्रैक्टिस, और एक बार दिमाग में घुसा तो लाइफ लॉन्ग इट इज इजी। CH2 CH2 यहाँ पे। नाउ दिस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखते हैं who is going to give the correct answer. Those who are sitting silently, please you also participate. Now tell me what will be its answer. मैम ब्यूटेन 1 3 डाइओइक एसिड। अब देखो मैम question- हाँ, ब्यूटेन 1
डाइओइक एसिड। 5 मैम ट्राइओइक एसिड। ब्यूटेन 1 3 और 1 2 3 4 5 ट्राइओइक एसिड। एक एक करके मैम ब्यूटेन 1 3 5 ट्राइओइक एसिड। ओके, अब मैं अपना आंसर बोलूं? पेंटेन हाँ बेटा बोलो। 1, मैम मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो। पेंटेन 1 3 5 पेंटेन 1 3 5 ट्राइओइक एसिड। Okay. Anyone else who want to give answer now? Anyone else? नो मैम। पेंटेन 1 3 5 ओइक एसिड। Okay. अब देखो मैं अब आपको एक चीज बताती हूँ. Whenever you are having any carbon chain and you are having a same functional group in that. अब अगर देखो मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ. लुक 1 2 3 4 5. तो मेरा ये फंक्शनल ग्रुप चेन में नहीं आ पा रहा है, isn't it? ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, बल्कि इट इज अ सेम, तो इसकी प्रायोरिटी भी सेम होनी चाहिए. इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4, तो मेरा ये वाला चेन में नहीं आ रहा है. अगर मैं यहां से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4, तो मेरा ये वाला चेन में नहीं आ रहा है. जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपका सेम फंक्शनल ग्रुप है एंड एनी ऑफ इट कोई भी एक अगर आपकी चेन में नहीं आता है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू लीव ऑल. आप सबको ही छोड़ दोगे, आप किसी को भी चेन में नहीं इंक्लूड करोगे. लाइक मैं इसको दोबारा लिखती हूँ, how you have to do. अब देखो मेरा कोई भी चेन में नहीं आ रहा था ना, तो अब मैं सबको छोड़ दूंगी. मैं यहां से स्टार्ट करूंगी नंबरिंग 1 2 3. ओके, क्यों? क्योंकि तो ये तो प्रोपेन हो गया फिर. यस, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो अब क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेन, फिर 1 2 3 और फिर क्या है, ट्राइओइक एसिड. ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस यस मैम। और ये वाला केस आपको जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप्स है, जैसे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, सब में ये वाला रूल एप्लीकेबल होगा. या तो आपका फंक्शनल ग्रुप, जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इफ देयर इज अ सेम फंक्शनल ग्रुप, वो आपकी चेन में इंक्लूड हो. अगर कोई एक भी चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो सबको आप चेन से बाहर कर दोगे. गॉट इट? यस मैम। यस यस मैम. मैम। यस मैम। ओके फाइन. नाउ हाँ बेटा, मैम अगर 2 है और उनमें से 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है तो उन दोनों को छोड़ना है. यस, 2 वाला तो जनरली इंक्लूड हो जाता है, 2 से ज्यादा में ये वाला इशू आता है. अगर 2 में भी ऐसा कोई Okay, क्वेश्चन आता है तो आप दोनों को छोड़ोगे. अगर 4 हैं 5 हैं, लाइक आपकी चेन बड़ी हो गई, 4 5 भी हो सकते हैं, तो यू आर गोइंग टू लीव ऑल. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट. अब एक टॉपिक, हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो नोमेनक्लेचर का ही पार्ट है, दैट इज योर होमोलोगस सीरीज. ओके, होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है कि आपकी वो एक सीरीज होती है जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम but physical properties are different. Okay, and at each step there is
there is एक मिनट बेटा, please stay. There is difference of one CH2 group. अब इसे ध्यान से सुनना बेटा, होमोलोगस सीरीज जो होगी ना वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप की होगी. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि आपका, मैंने एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया, दैट इज योर राइट होमोलोगस सीरीज फॉर alcohol from C1 to C4. आपको कार्बन एटम 1 से कार्बन एटम 4 तक होमोलोगस सीरीज लिखनी है. तो योर फर्स्ट मेंबर विल बी व्हाट, जिसके पास एक ही कार्बन एटम होगा, तो दैट इज योर CH3OH. फिर आपका सेकंड क्या हो जाएगा, C2H5OH. थर्ड क्या हो जाएगा, C3H7OH. एंड फोर्थ हो जाएगा C4H9OH. नाउ इफ यू आर गोइंग टू लुक, तो हर एक के बीच में CH2 का डिफरेंस आ रहा है. जैसे अगर मैं इसको ओपन फॉर्म में लिखूं, इट विल बी मोर क्लियर टू यू पीपल. आपका फर्स्ट मेंबर ये हो गया, दूसरा मेंबर CH3CH2OH हो गया, थर्ड मेंबर CH3CH2CH2OH हो गया, एंड देन CH3CH2CH2CH2OH हो गया. अगर आप देखो तो सब में CH2 का डिफरेंस है. यस Yes, ma'am. Now, this is called as a homologous series. अब because all of them are belonging to the alcohol group, तो इनकी chemical properties तो same होंगी. But क्योंकि there is the difference in the CH2 group, किसी के पास ज्यादा ग्रुप है, किसी के पास कम ग्रुप है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी. और ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा C1 to C4, मैं ऐसे भी दे सकती हूँ, दैट राइट अ होमोलोगस सीरीज फॉर aldehyde from C10 to C15. Any can come, like carboxylic acid from C4 to C9, कुछ भी आ सकता है. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, you require to write down their names also. नेम्स क्या हो जाएंगे, अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप इनके नाम भी लिखो, हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन द नेम्स. मैं स्टार्टिंग से बताओगे इसमें. Methanol. मिथेनॉल, इथेनॉल, Ethanol. Propanol. ब्यूटेनॉल. Butanol. पेंटेनॉल. समझ में आ गया होमोलोगस सीरीज क्या है. यस मैम. Excuse me, ma'am. यस बेटा. मैम C15 को क्या Ma'am. लिखेंगे? C15 को क्या लिखेंगे, दैट अच्छा C10 के बाद से आई विल प्रोवाइड यू, मैं अभी लिख देती हूँ तुम्हें सारे. ओके मैम कहाँ तक आ Excuse जाता me, है इसके ma'am. अंदर? देखो बेटा, मैक्सिमम C10 तक ही आते हैं, वैसे तो C10 के ऊपर नहीं आते हैं. गॉट इट. एंड इफ यू वांट तो मैं आपको वो सारे C15 से C20 तक भी मैं प्रोवाइड कर देती हूँ. मैम 10 तक के तो आते हैं, उसके आगे नहीं आते. 10 तक ही आते हैं, 10 के ऊपर नहीं आते हमारे पास. इन द 11-12 में भी नहीं आएंगे 10 के ऊपर. ओके अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो क्या, एक और टेबल है. अभी तक मैंने आपको 2 टेबल्स याद करने के लिए दी थी, बिसाइड्स दिस रूल फॉर द फंक्शनल ग्रुप. यस और नो. Yes, Excuse me, ma'am. ma'am. यस बेटा बोलो. मैम वो एक चीज पूछनी थी मैम, वो कल आप टेट्रा और ब्यूट वाला बता रहे थे ना मैम, वो एक बार दोबारा बता दो, वो मतलब क्लियर नहीं हो रहा मैम. टेट्रा ब्यूट वाला कैसा बेटा.
मैम तब मैंने एक बार आंसर दिया था कि मैम इसमें तो टेट्रा की जगह ब्यूटेनल आना चाहिए, पर अच्छा आपने कहा अच्छा था। अच्छा, ठीक है। देखो बेटा, क्या होता है कि व्हेन भी आपने 10th में पढ़ा हुआ है एल्केन्स, है ना? यू ऑल आल्सो लिसन यस केयरफुली, मैम। आपने एल्केन्स पढ़ा हुआ है। एल्केन्स में हम क्या कहते हैं? अगर आपका एक कार्बन आटम है तो वो मीथेन है, इजंट इट? 2 कार्बन आटम से तो इथेन है, 3 है तो प्रोपेन है, 4 है तो ब्यूटेन है। सिमिलरली इट गोज ऑन। तो जो वो वाला क्वेश्चन था उसमें देयर वाज द 4 कार्बन एटम्स। अगर आप इसके आगे टेट्रा लिखते हो तो टेट्रा का मतलब क्या हो गया कि आपका जो 4 कार्बन एटम्स हैं वो 4 बारी प्रेजेंट है। आपका कोई मॉलिक्यूल है, इसके पास ऐसे 4 बारी प्रेजेंट है, तभी तो आप उसको टेट्रा लिख पाओगे। अगर आपके पास एक ही C4 है तो उसको तो आप ब्यूटेन ही बोलोगे, जो भी यहाँ पे ग्रुप होगा उसके वर्ड के बाद। गॉट दिस पॉइंट? यस मैम। पक्का? यस मैम। यस ओके फाइन। अब देखो, एक और इम्पॉर्टेंट टेबल है विच आई एम प्रोवाइडिंग यू पीपल, वो वाली टेबल भी यू हैव टू लर्न। टेक योर टाइम, आराम आराम से लर्न करो, नो इश्यूज, बट अप टू द मार्च इट शुड बी लर्न। मार्च तक? मतलब मार्च तक इसलिए कि 12th में भी काम में आएगा। नेक्स्ट ईयर तक। हाँ, तब तक एकदम अच्छे से हो जाना चाहिए, और मैं जब PT2 लूंगी तो PT2 तक भी। ओके फाइन। ओके। नाउ लुक, आज हमने क्या किया कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जब प्रेजेंट होता है किसी में तो एक से ज्यादा हो सकता है, इजंट इट? अब यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल्स किए, हमारे पास सेम फंक्शनल ग्रुप्स थे। यस, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हो। नाउ इफ यू आर हैविंग द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट, तो yesterday I told you one सीरीज, मैंने एक सीरीज बताई थी आपको जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी थी। यस, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। CH3, CH, CH2, CH, COOH, CH का Cl और यहाँ पे OH। नाउ अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कितने फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं? 1, 3 है। 2, 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, 3 है। अब इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम हमेशा नंबरिंग कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू द सीरीज विच आई प्रोवाइडेड यस्टरडे, कि किसकी सबसे ज्यादा वेटेज है। तो सबसे ज्यादा वेटेज हमने कल देखा था, तो हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब जब हम इसका नाम लिखना चाहेंगे तो आप कैसे लिखोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। बताओ मुझे। मैम 1 ओइक एसिड, 2 क्लोरो, 4 ऑल, उसके बाद मैम पेंट आ जाएगा, पेंट। ओके, अब देखो, ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हमें एक और टेबल याद करनी है। क्या होता है बेटा कि जैसे अब हमने ये कहा कि हमारा ये जो है सबसे जो COOH ग्रुप है इसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, इजंट इट? तो जब इसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है तो हम इसको तो OIC ही लिखेंगे, जो हमने टेबल 1 पढ़ी हुई है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी ना कि आप क्या बोलते हो इस ग्रुप को, OIC ही लिखेंगे। तो ये आपका एज अ यूज होगा मेन ग्रुप। अब इसके बाद जितने भी ग्रुप प्रेजेंट होंगे कार्बन चेन में, जैसे यहाँ पे 2 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो आप उनको बोलोगे दे आर द सब्स्टिट्यूएंट्स। अब जब वो वाले ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होंगे तो यहाँ पे हम OH के लिए ऑल नहीं यूज करेंगे।
Okay, so what will be the table? I am writing the table. Prefix for secondary functional groups. Now look, अगर आपका OH ग्रुप जैसे यहाँ पे एज अ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप यूज कर रहे हैं ना हम इसे, अगर होता है तो यू आर गोइंग टू यूज अ हाइड्रोक्सी. अगर OR ग्रुप है तो यू आर गोइंग टू यूज अ एल्कोक्सी. इसे लिखते जाना बच्चे साथ साथ. NH2 ग्रुप है तो मैम OR ग्रुप मतलब? OR ग्रुप मतलब ये होता है बेटा कि लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे आ गया COCl, मैं इसको लिख दूंगी यहाँ पे. ओके, इसको मैं लिख दूंगी. We will do examples also for this. Then NHR, alkyl amino. NR2, dialkyl amino. अब मैंने यहाँ पे OR लिखा था ना, COCl, क्लोरो फॉर्माइल. NH2 मैंने यहाँ पे लिखा था ना, CONH2, कार्बामोइल. Then CHO. CHO you can write down aldo also. You can write down formyl also over here. Then C double bond O. You can write keto also. You can write oxo also. मैम आपकी वीडियो स्टॉप हो गई. For everyone बेटा मैम आ गई मैम. आगे हमारी है. मैम आ रही है. it happens कि network issue हो जाता है. Then COOH, कार्बोक्सी, या फिर इसको आप बोल सकते हो एल्कोक्सी कार्बोनिल. देन COOR. COOR आपका हो गया कार्बल कॉक्सी या फिर एल्कोक्सी. CN साइनो. NC आइसोसाइनो. नाउ इफ यू आर हैविंग X, X का मतलब क्या होता है? क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो. हेलोजेंस. There you are going to write down the hello only. Okay, hello मतलब कि hello का मतलब क्या हो गया? अगर Cl ग्रुप है तो क्लोरो, क्लोरीन है तो मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही. I है तो आइडो. Got it? NO2 ग्रुप है तो आप इसको नाइट्रो ही बोलोगे. There will be no suffix. Clear? एक्सक्यूज मी मैम. Yes बेटा. यस मैम. मैम मैम COOH को तो आपने बोला था ओइक एसिड ही लिखेंगे. अगर वो एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप है, अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है, अगर वो हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेंगे तो यू आर गोइंग टू राइट डाउन इट एज अ कार्बोक्सी.
ओके पर मैम substituent उसको तो लेंगे सबसे यानी पहले कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो उसको मेन ग्रुप यूज करेंगे ना हमेशा। हाँ, अब अगर एक बात अब मैं बताती हूँ, अगर वो किसी चेन के अंदर जो है आपका, जैसे हमने अब एक एग्जाम्पल किया था, अब मैं आपको वो एग्जाम्पल फिर से लेके आती हूँ क्योंकि वहां पे अब करेक्शन है। हमने यहाँ पे क्या बोला था, ट्राइओइक एसिड, इजंट इट? यस। yes ma'am यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे हमने ट्राइओइक क्यों बोला था, क्योंकि हमने इनको किसी को भी चेन में इंक्लूड नहीं किया। जब आपने चेन में इंक्लूड नहीं किया तो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट हुए। तो अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, 1 2 3 कार्बोक्सी। carboxy ओके, और you can write down over here carboxylic acid also. Got it? Like ऐसे tri carboxylic acid. अब आ गया बात समझ में बेटा? yes ma'am अब यस मैम। यस मैम। तो मैम फिर ये ट्राइओइक एसिड है वो गलत हो गया। यस, मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बोला था क्योंकि पहले आपको ये बताना जरूरी था टेबल। ओके, द करेक्ट विल बी दिस विल बी रॉन्ग। गॉट इट? मैम तो फिर ये हाँ मतलब ट्राई भी लगाना पड़ेगा। हाँ बेटा, ट्राई तो लगाना पड़ेगा क्योंकि ये 3 बारी है। मान लो यहाँ पे एक और होता है ना, तो अब आप यहाँ पे क्या लिखते, देखो 1 2 2 3 और फिर टेट्रा। गॉट इट? यस मैम। अब यस मैम। अब देखो, तो अब हम मैम कर, अगर हम कार्बोक्सी लिखेंगे तो उसमें भी ट्राई लगाएंगे। हाँ क्योंकि 3 बारी है ना बच्चे, 3 बारी है ना। आप ओके मैम ट्राई डाई टेट्रा पेंटा क्यों लिख रहे हो, क्योंकि वो उतनी बारी प्रेजेंट है। ओके, अब हम आ ओके जाते हैं। मैम मैम टेबल दिखा दो। हाँ बेटा, टेबल देखो आप पहले, फिर हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। मैम एक बार ये जो हेलोजन वाला है इसके बाद से दोबारा बता दो। ये वाला बेटा, ये मैंने आपको ये, यस मैम। सुनो बेटा, ये दोनों ग्रुप्स ऐसे हैं जो एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज हो चाहे एज अ मेन ग्रुप यूज हो, इनके नाम नहीं बदलते हैं, इनका दोनों कंडीशन में नाम सेम रहता है। मैम कार्बोनिल। हाँ जी बेटा, मैम COOR में क्या लिखा है? COOR में कार्बल ऑक्सी। मैं दोबारा लिख देती हूँ। मैम उसके नेक्स्ट वाला भी है एल्कोक्सी। एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। ओके ओके। यस मैम। अब मैं अपने क्वेश्चन पे आऊं, इफ यू हैव नोटेड डाउन दिस। नो मैम। मैम कर लिया और टाइम भी हो गया आज तो। हाँ टाइम भी हो गया, पता ही नहीं लगा। तो चलो फिर इसका क्वेश्चन हम कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको अब मैंने 3 टेबल्स दे दिए हैं, उसको आप डेली एक बारी बस 5 मिनट के लिए देख लिया करो। डेली देखोगे तो 15 डेज में याद हो जाएंगे। मैम एक तो प्रायोरिटी वाला है, एक ये वाला और एक आपने बुक में दिया था वो वाला। हाँ, कि आप क्या नाम बोलोगे, जैसे वो वाला था ना, OH को आप ऑल बोलोगे, CHO को अल बोलोगे, वो वाला। ओके, ये वाला। ओके मैम। ओके बेटा, ओके मैम। एंजॉय योर थैंक यू मैम। हॉलीडेज।